Hi guys, this is Abhishek. Welcome to my channel. So today my topic is the questions that has been asked as of now pertaining to transformers, because transformers itself is a huge topic. So basically, if you are going to attend an interview, then somebody focuses on transformers, somebody focuses on motors, generators. So these are the basic topics in electrical. So today I've decided to cover the transformer parts first. सो आई विल डिस्कस हेयर जितने सारे क्वेश्चन ट्रांसफार्मर्स के बारे में अराइजेज होते हैं ड्यूरिंग इंटरव्यू उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा अबाउट ट्रांसफार्मर बेसिक्स की। मैं यहाँ पे जस्ट आपको एक गाइड करने वाला हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कितने टाइप के क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं पर्टेनिंग टू ट्रांसफार्मर्स। सो मैं आज उसके बारे में डिस्कस करूँगा, और अगर किसी टॉपिक्स के बारे में आपको डिटेल से जानना है तो श्योर आप मुझे कमेंट्स करें, श्योर आई विल डिस्कस। और बहुत सारे कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियो डाले हैं, आप उनको रेफ़र कर सकते हैं। एंड सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसफार्मर्स के बेसिक आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है, हाउ डज ट्रांसफार्मर वर्क। सो दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस नॉर्मली यू शुड नो। एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट इफ़ यू आर वर्किंग एंड आपने कहीं पे ट्रांसफार्मर देखा है तो श्योर go through the nameplate details of the transformer. Nameplate details, here I will show an examples. Like the basic details you will see in the nameplate is type of cooling. Here type of cooling is ONN, somewhere it will be ONAF, while natural air forced, while natural air natural. That means कि while natural है, while circulation will be natural and air will be also natural. Somewhere it is ONAF, while natural air is forced, while will naturally circulates throughout the transformer while cooling के लिए, because while transformer while एक cooling medium होता है वाइंडिंग का। और ये रेटिंग यू विल सी द रेटिंग, हेयर रेटिंग इज 25 MVA ट्रांसफार्मर, रेटेड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, यू विल सी कनेक्शन सिंबल DYN11। what is the rated voltage? तो HV primary side is 33 kV, LV is 11.5 kV. what is the rated current? HV you will see 33 kV side 437 ampere, LV side 1255 amperes. how many phases are there? 3 phases. Whereas you will also find some basic details about percentage impedance. this is must, this is required during fault calculations. तो ये बेसिक्स क्वेश्चन है कि व्हाट डज परसेंटेज इम्पिडेंस मीन्स, समटाइम्स इट इज़ 8%, 12.5%। इस टाइप का परसेंटेज का मतलब क्या होता है, somebody might ask. So percentage impedance is it represents the amount of normal rated primary voltage which must be applied to the transformer to produce full rated load current when the secondary winding is short. So if we apply the 12.5% of primary voltage, that means suppose if we have a primary voltage of 33 kV, so if we are going to apply 33 kV to 12.5% of that much voltage by keeping the secondary short, then it will produce the full load current. Okay, so this is the percentage impedance. You will see the basic details, like you have seen ONAN details, where O represents oil, A represents air, N represents natural. Somewhere you will find ONAF, that means while natural air, F represents force. While is natural circulation, while air is forced. It is forced. How you will force the air? You will need external medium like fan, cooling fan. आपने देखा होगा, या फिर अगर नहीं देखा तो आप रेफ़र कर सकते हो पिक्चर्स, फोटो को, कि रेडिएटर के पास फ़ैन लगे होते हैं जो कि ऑयल सर्कुलेशन को कोल्ड करते हैं। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अभी हमारा ट्रांसफार्मर में कहीं कहीं पे 25/31.5 MVA लाइक दैट, इस टाइप का रेटिंग भी रहता है। तो आपको देखेंगे कि ONAF भी रहता है, ये रेटिंग आपको रहेगा। सपोज ONAN लिया है, दैट मीन्स कि आप वाइल नेचुरल एयर नेचुरल में आप 25 MVA तक लोडिंग ट्रांसफार्मर को कर सकते हैं। फिर अगर आपको लोडिंग बढ़ाना है देन आपको फ़ैन को ऑन करना पड़ेगा। उसमें प्री सेटेड वैल्यू होते हैं कि अगर आपका लोड इतना है, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द वाइल टेम्परेचर, कि आपके टैंक का वाइल टेम्परेचर क्या है, उसके बेसिस पे वो फ़ैन ऑन होता है। वाइल का टेम्परेचर कब बढ़ेगा? जब आप ट्रांसफार्मर में लोडिंग बढ़ाओगे तो उसकी बाइंडिंग हीटअप होगी, देन वाइल का टेम्परेचर बढ़ेगा, अकॉर्डिंगली फ़ैन भी चालू होगा, क्योंकि वाइल तो नेचुरली सर्कुलेट हो ही रहा है, प्लस वाइल को ठंडा करने के लिए आपको फ़ैन भी ऑन करना पड़ेगा। सो दीज आर द बेसिक डिटेल यू मस्ट
you should know about the transformer, you should know about the transformer nameplates. This is just the just overview that I am telling you. You should also go into that deep to attain interview. दूसरे जो ट्रांसफार्मर्स के जो पार्ट्स होते हैं उसमें बेसिकली 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. एक तो आपको इरेक्शन स्टेज, दूसरा कमीशनिंग स्टेज, तीसरा जो है मेंटेनेंस स्टेज. अभी इरेक्शन स्टेज में क्या है कि कोई कंपनी उस ट्रांसफार्मर का जहाँ पे रिक्वायरमेंट वहाँ पे इरेक्शन करती है, तो कैसे कैसे इरेक्शन करते हैं. दूसरा है इरेक्शन करने के बाद जो कमीशनिंग पार्ट होता है ट्रांसफार्मर को भी चार्ज करना है, तो उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं. दूसरा है मेंटेनेंस. अभी इरेक्शन भी हो गया, कमीशनिंग भी हो गया, नाउ अभी क्या मेंटेनेंस वाले उसको टेकअप करते हैं और मेंटेनेंस करते हैं. उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती है, CM प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रिडक्टिव मेंटेनेंस. ये 3 टाइप के मेंटेनेंस होते हैं ट्रांसफार्मर में. CM कंडीशन मॉनिटरिंग करते हैं बेस्ड ऑन सम पैरामीटर ऑफ द ट्रांसफार्मर, फिजिकली ट्रांसफार्मर को देखते हैं. तो सबसे पहले इरेक्शन पार्ट में घुसेंगे कि इरेक्शन पार्ट में हम लोगों को क्या कवर करना होता है. सपोज़ कोई बंदा ऐसा भी हो जिनको प्रोजेक्ट्स में जाना है या प्रोजेक्ट्स में जा रहे हैं, तो उनके लिए क्वेश्चंस अलग हो जाएंगे, क्योंकि बेसिक जो फोकस होगा इंटरव्यूअर का वो होगा इरेक्शन और कमीशनिंग के ऊपर होगा. कोई बंदा अगर मेंटेनेंस में जा रहा है, प्लांट मेंटेनेंस में जा रहा है, तो उसका फोकस रहेगा कि वो मेंटेनेंस में जाए. बट बेसिकली जो कॉमन होते हैं कि ट्रांसफार्मर में इरेक्शन, कमीशनिंग, मेंटेनेंस तीनों का एक पार्ट कॉमन होता है. उसके बारे में ज़्यादा डीप से जाते हैं. आप इरेक्शन में जाए, कमीशनिंग में जाए, मेंटेनेंस में जाए, आपको टेस्टिंग पता होना चाहिए. ट्रांसफार्मर में क्या क्या टेस्टिंग्स होते हैं. तो so these are the few tests I am going to discuss, like measurement of voltage ratio and check of phase displacement, measurement of winding resistance, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग का रेसिस्टेंस क्या है, मेजरमेंट ऑफ इंसुलेशन रेसिस्टेंस, measurement of no load loss and no load current. These are actually carried out by manufacturer. Measurement of load loss and impedance voltage is also done where the transformer is being manufactured. Induced over voltage with stand test, magnetic balance test, ये साइट पे करते हैं हम लोग. magnetic circuit test, tests on CTs, whatever the CT we used for differential protections, REF, SEF. Then we have some special type of test for CTs, PTs also. Test on tap changer, है ना. each and every tap changers पे voltage ratio चेक करते हैं. सेपरेट सोर्स वोल्टेज विथ स्टैंड टेस्ट, वाइल BDV टेस्ट, ब्रेकडाउन वोल्टेज, ये अभी टेस्टिंग वाइल में आ गया. चेक्स ऑन कंट्रोल पैनल्स. कंट्रोल पैनल्स में बहुत सारे फैंस होते हैं, कंट्रोल पैनल्स में बहुत सारे कॉन्टैक्टर्स और ये सब होते हैं जो कि फ़ैन को कंट्रोलिंग करते हैं. और भी बहुत सारे उसमें चीज़ें जैसे मैग्नेट, बुकोल्स रिले, उसका अलार्म ट्रिपिंग, PRP अलार्म ट्रिपिंग, MOG लेवल्स, ये सब का सारा कंट्रोलिंग होता है और उसके थ्रू हम लोग फर्दर वो रिले और कंट्रोल पैनल में लेते हैं. ऑयल लीकेज का टेस्ट होता है, विजुअल इंस्पेक्शन एंड डायमेंशनल टेस्ट, SFRA टेस्ट, दूसरा SFRA. तो ये सब टेस्ट परफॉर्म होते हैं ड्यूरिंग साइट एक्टिविटीज़ और ड्यूरिंग कमीशनिंग एक्टिविटी और ड्यूरिंग आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस ट्रांसफार्मर. So these are the tests are being carried out. So आपको, so I'm not going deep into that testing. So normally आपको ये टेस्टिंग के बारे में पता होना चाहिए. So that's why I have briefly discussed about that. ये आपका इरेक्शन कमीशनिंग स्टेज में टेस्टिंग के बारे में पूछेंगे. फिर दूसरा प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर. प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर्स में वट एवर द प्रोटेक्शन इज़ बीइंग यूज्ड टू प्रोटेक्ट द ट्रांसफार्मर्स, ये सब सारे आ जाते हैं. जैसे कि ट्रांसफार्मर में नॉर्मली डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, REF रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट, SEF स्टैंड बाई अर्थ फॉल्ट, ओवर करेंट, VYF ओवर फ्लक्सिंग, देन हार्मोनिक ब्लॉकिंग, इनरस करेंट. ये सब क्या होता है नॉर्मली आपको एक बार थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा. इनरस करंट, whenever we charge the transformer for the first time, you know, the like motors, it also takes happy current during starting. During that time हम लोग फिफ्थ हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक को भी ब्लॉक करते हैं कि हमारा इनरस पे वो ट्रिप ना हो ट्रांसफार्मर. सो ये सब प्रोटेक्शन आपको एक बार देखना पड़ेगा. डिफरेंशियल प्रोटेक्शन क्या है, REF क्या है, SEF क्या है, ओवर करेंट, ओवर फ्लक्सिंग क्या है.
बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स ने यहाँ पे मैसेज किया कि उनको डिफरेंशियल प्रोटेक्शन एंड आरईएफ पे वीडियो बनाऊँ, सो आई एम वर्किंग ऑन इट एंड श्योर आई विल कम आउट with the differential protection REF very soon. So we will discuss there in details, but for now just these are the protection that is being asked during interview questions, so you can prepare accordingly. Then ये तो मैकेनिकल प्रोटेक्शंस, इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन में तो आप वो सब एक बार आप डिस्कस करोगे या देखोगे तो समझ में आएगा, अदरवाइज मैं डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ डिफरेंशियल आरईएफ एसईएफ के ऊपर, श्योर आई विल डिस्कस देयर। बट अभी मैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में जल्दी जल्दी आपको बता दूँ। मैकेनिकल प्रोटेक्शंस में फॉकहोल्ज प्रोटेक्शन, फॉकहोल्ज प्रोटेक्शन क्यों यूज़ करते हैं, इसका फंक्शन क्या है, इसमें भी लिमिट होता है इसका। फॉकहोल्ज अलार्म ट्रिप, गैस का कंटेंट बढ़ जाता है वाइल में, तो ये उसके अकॉर्डिंगली ये एक्ट करता है। पीआरवी प्रेशर रिलीफ वाल्व, अगर ट्रांसफार्मर के इनसाइड अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो दैट प्रोटेक्शन एक्ट, इसमें पीआरवी में ट्रिप ही होता है, तो सीधा वाइल बाहर करता है ट्रांसफार्मर के बाहर। अगर ट्रांसफार्मर के अंदर किसी वजह से प्रेशर बढ़ गया, किसी फॉल्ट की वजह से प्रेशर बढ़ गया, तो MOG मैग्नेटिक वाइल गेज, यू विल सी द वाइल लेवल इन द कंजर्वेटर। अब कंजर्वेटर में भी बहुत सारे क्वेश्चन से राइज होते हैं कि व्हाट इज़ कंजर्वेटर, कंजर्वेटर क्या है। सो कंजर्वेटर क्या है, इट्स एक्ट। ब्रीदर क्या है, ब्रीदर आप देखोगे ये सिलिका जेल, यहाँ पे एक वाइल कप होता है। ब्रीदर ब्रीदिंग कैसे करता है, इन केस अगर हमारा ट्रांसफार्मर का लोडिंग बढ़ता है तो उस केस में हमारा वाइल का टेम्परेचर हाई जाता है, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर के टैंक के अंदर जो भी गैसेस बनता है वो ब्रीथ आउट करता है। इन केस हमारा ट्रांसफार्मर लोडिंग कम है तो वो बाहर से एटमॉस्फेरिक से एयर लेता है, क्योंकि उस टाइम टैंक का जो वाइल लेवल है वो डाउन जाता है। सो ये ब्रीद इन ब्रीद आउट चलते रहता है अकॉर्डिंगली। लोड आपका पैटर्न कैसा है, हाई है लो है, उसके हिसाब से। कंजर्वेटर के अंदर एक हैवी एम्बियर ट्रांसफार्मर में एक एयर बैलून होता है। एक्चुअली ये कंजर्वेटर, इसके अंदर बैलून्स होते हैं और इसके अंदर वाइल होते हैं, और ये दिस इज सिलिका जेल, ये ब्रीदर। एयर इन या एयर आउट, दोनों के केस में ये ब्लडर में एयर जा रहा है, जिससे एयर का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट वाइल के साथ नहीं हो रहा है। So to avoid the direct contact between vial and atmospheric air, in order to keep the moisture, vial moisture in touch, so we use here air balloon. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एयर बैलून में एयर जब अंदर जाएगा तो एयर ब्लडर बड़ा होगा, अकॉर्डिंगली आपका वाइल लेवल मेंटेन करेगा ट्रांसफार्मर में। सो ये सब जो चीज़ें हैं आपको एक बार बेसिक आपको देखना पड़ेगा कि कैसे वर्क करता है। अगर आपको चाहिए डिटेल में वीडियो, श्योर आई विल मेक, डिपेंड अपॉन योर कमेंट्स एंड योर रिस्पॉन्स। सो इस टाइप के क्वेश्चंस राइजेज होते हैं। अभी ट्रांसफार्मर के अंदर जो वाइल कूलिंग के लिए यूज़ होते हैं उसका टाइप क्या होता है, कौन से ग्रेड का वाइल होता है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी ट्रांसफार्मर वाइल एक बहुत ही बड़ा पैरामीटर होता है, क्योंकि आपको वाइल का पैरामीटर्स मेंटेन करना पड़ता है। PPM कितना 15% के अंदर आपको मेंटेन करना पड़ेगा। वाटर कंटेंट वाइल के अंदर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सॉरी 5 to 15%। यू कैन से BDV ब्रेक डाउन वोल्टेज डिपेंड अपॉन 50-55 kV। ब्रेक डाउन वोल्टेज का टेस्टिंग कैसा होता है, किस तरह से सैम्पलिंग करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। हम लोग ऑयल का DG एनालिसिस भी करते हैं, डिसॉल्व गैस एनालिसिस, इसके बारे में हमने डिटेल से काफ़ी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप कृपया उसे रेफ़र करें, क्योंकि DG इज़ वेरी गुड टॉपिक्स एंड बहुत सारे अच्छे इंटरव्यू में DG से काफ़ी क्वेश्चन राइज करते हैं। सो बेटर यू गो थ्रू दैट टॉपिक्स ऑन माय चैनल। एंड ये सब ऑयल का जो टेस्टिंग्स है, नॉर्मली और भी पैरामीटर्स होते हैं, मेनली ये 3 पैरामीटर्स, ऑयल का PPM, BDV, ये सब नॉर्मली पूछा जाता है। अगर किसी वजह से मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा हो, BDV कम हो, तो हम लोग ऑयल को सर्कुलेट करते हैं, ऑयल को हीटअप करते हैं थ्रू
ऑयल फिल्ट्रेशन मशीन आते हैं जो कि जिसके थ्रू हम लोग ऑयल को फिल्टर करते हैं, देन एक सर्टेन BDB लेवल और PPM लेवल तक हम लोग पहुँचते हैं आफ्टर सर्कुलेशन ऑफ द ऑयल। सो ये था ट्रांसफार्मर का ऑयल की प्रॉपर्टीज़, ये सब सारे देखने को मिलते हैं और इस सब के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। अभी क्या ट्रांसफार्मर की मेंटेनेंस में जाते हैं तो नॉर्मली CM कि आप नॉर्मली कंडीशन मॉनिटरिंग करते हो ट्रांसफार्मर का। कंडीशन मॉनिटरिंग में काफ़ी सारे क्वेश्चन आप कंडीशन मॉनिटरिंग कैसे फिजिकली आप ट्रांसफार्मर को देखते हैं, उसमें ऑयल का टेम्परेचर, वाइंडिंग का टेम्परेचर, ऑयल लीक, लोड कितना है, ब्रीदर या सिलिका जेल, ये सब का क्वांटिटी हम लोग चेक करते हैं, करेंट, वोल्टेज, ये सब का एक वैल्यू हम लोग लिखते हैं। नॉर्मली ये कंडीशन मॉनिटरिंग में कवर होता है ताकि किसी टाइप का नॉइज़ तो नहीं आ रहा ट्रांसफार्मर में, हमिंग नॉइज़। और ये नॉर्मली फिजिकली देखने से पता चलता है कि हाँ ट्रांसफार्मर हमारा हेल्दी है कि नहीं, MOG का लेवल, मैग्नेटिक ऑयल लेवल का गेज, ये सब हम लोग चेक करते हैं नॉर्मली फॉर कंडीशन मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांसफार्मर्स। फिर हम लोग PM PDM ट्रांसफार्मर का करते हैं। PDM नॉर्मली आप CM ही कर ले सकते हो आप। PM में नॉर्मली हम लोग क्या क्या करते हैं, वो हम लोग ऑयल सैम्पलिंग करवाते हैं। ऑयल सैम्पलिंग किसके लिए, DGA के लिए, BDB के लिए, PPM के लिए। उसके बाद हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी टर्मिनल टाइटनेस, क्लीनिंग, कंट्रोल पैनल चेकअप, PRV, बुक-होल्स, ऑयल टेम्परेचर, अलार्म, ट्रिप, वाइंडिंग टेम्परेचर, अलार्म, ट्रिप, ये सब सारे जितने होते हैं कंट्रोल सर्किट से फिज़िकली हम लोग चेक करते हैं और अकॉर्डिंगली कंट्रोल पैनल में अलार्म या ट्रिप आ रहा है कि नहीं वो हम लोग चेक करते हैं। सो ये सब सारी चीज़ PDM PM ये सब में कवर होते हैं। तो ये सब के बारे में नॉर्मली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो कितने अलार्म का लिमिट होता है, ट्रिप का कितना लिमिट है, वाइंडिंग टेम्परेचर का कितना है, ऑयल का कितना है। सो नॉर्मली हमारा जो वाइंडिंग का टेम्परेचर होगा वो ऑफ कोर्स ज़्यादा होगा, कितने वाइंडिंग टेम्परेचर पर हमारा फ़ैन ऑन होता है। ये सब सारे जो बेसिक क्वेश्चंस हैं आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। ये मैं आपको एक सिंपल दिखाऊंगा कि हमने एक टेस्टिंग करवाया था ऑयल का, जिसमें हम लोगों ने 6 वैल्यू लिया था एक ट्रांसफार्मर का, 68, 72, 74, 74, 78, 72 से एवरेज वैल्यू वी टेक 74 इज कमिंग रिक्वायर्ड। एक नॉर्मल IS स्टैंडर्ड IS 1866 के हिसाब से 60 होना चाहिए, दैट इज़ ओके, देन यू कैन अप्रूव यस आवर ऑयल BDB इज़ ओके। हमने एक टॉपिक्स का नाम लिया था SFRA, स्विफ्ट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस टेस्ट। इसमें नॉर्मली क्या करते हैं, तो स्विफ्ट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस टेस्ट इन्वॉल्व्स मेजरिंग द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ ईच इंडिविजुअल वाइंडिंग, और the frequency response is measured by injecting a sine wave voltage signal with respect to earth at one end of winding to be tested and measuring the signal amplitude at other end of the winding. So इसमें हम लोग नॉर्मली attenuation चेक करते हैं, है ना, and the attenuation of the transmitted signal relative to reference signal at the input terminal measured over a frequency range from 20 Hz to 2 MHz. So accordingly हम लोग एक ग्राफ निकालते हैं HV winding between 1E and 1V by keeping LV open. So in that हम लोग स्विफ्ट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस टेस्ट करते हैं। सो नॉर्मली आपने देखा कि इस टाइप के बेसिक्स क्वेश्चंस नॉर्मली पूछे जाते हैं, और अगर मैं इसको डिटेलिंग करने लगूँ तो फिर ठीक है, ऑफ कोर्स मैं श्योर करूँगा, दैट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप लोग कैसा रिस्पॉन्स देते हैं इस वीडियो पे। और आई हैव सो मेनी टेस्ट रिपोर्ट्स, सो श्योर आई विल शो एंड वी विल गो थ्रू ईच एंड इंडिविजुअल टेस्ट्स ऑफ द ट्रांसफार्मर्स वेरी soon. And how do we check how do we perform the testings, how do we perform all these checks at site? Sure, I will make sure to share with you guys, of course. So till now that हम लोग यहाँ तक जानते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं, अकॉर्डिंगली आप लोग जाएँ। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि बस इतने ही क्वेश्चंस आएंगे, बट आप जब इस टाइप से क्वेश्चन, इस टाइप से टॉपिक्स को पकड़ के आप अगर पढ़ना स्टार्ट करोगे, सो यू विल कम अक्रॉस सो मेनी क्वेश्चंस दैट विल बी हेल्पफुल एंड दैट विल ऑल्सो इम्प्रूव योर knowledge, and also you will get expert on that. So thank you very much, and please अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें कि आपको किस टॉपिक्स और क्या टेस्ट रिजल्ट्स और किसके बारे में आपको जानना है, बिकॉज आई हैव मैनी थिंग्स टू
so you guys, and sure I will say so. So thank you very much. Thank you very much.